Hello everyone, welcome to Bio Library, and I am going to solve 2009 part A for you. I'm doing part A only because of time constraint, as well as I know the importance of part A is much more than part B, because in part B you have more options. It is more of theoretical kind, so I would be targeting part A of the papers as much as I can solve, or I can give my time to. And please let me know about the previous video, which was regarding the formulas, in which I have presented some 26 formulas which are important for you from all the parts: chemistry, your aptitude portion, your general like biochemistry and microbiology. But I think that portion is a little hazy, which like I got DM from one student on Instagram that saying that, ma'am, it is very hazy, but if at all, if I'm doing what at high definition also, I'm unable to see the clear visuals. So kindly let me know in the comment section or via DM on Instagram that whether or not that initial previous video, which I think is very important for you guys, was visible or not. Okay, because from my part it is visible. When I do it at the highest resolution, it is visible. Yeah, I know it's hazy because the pictures I've taken were I think they were not of very high quality, so I'm sorry for that. But do let me know if that happens. I think I'll be able to repeat it. Okay, so let's start with the part A of 2009 and 10. So we'll do the section A, where we have how many questions? 50 questions, and all of them are compulsory. Okay, so let's start with first question. First question is saying, which of the following does not apply to triple helix DNA? So we all know कि जो triple helix होता है उसमें what happens is your Watson-Crick base pairing is there, plus Hookstein as well as reverse Hookstein base pairing is there. Okay, so it is saying the options पढ़ते हैं. First is it is triple stranded in nature. Of course it is. Second, it requires only Hookstein hydrogen bonding. No, it requires your Watson-Crick, Hookstein as well as reverse Hookstein. So this option will be correct क्योंकि ये क्या पूछ रहा है? It is asking about does not apply. So it is asking about incorrect one. C is saying Watson-Crick. D is saying it forms at neutral or acidic pH. So the answer would be B. अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की. अ सी टर्मिनल केडल मोटिव विल मोस्ट ऑफन इंश्योर. वी ऑल नो कि केडल किसके लिए होता है? ई आर रिटेंशन के लिए होता है, राइट? सो इट इज़ फॉर ई आर रिटेंशन. इट मेक श्योर दैट if a protein gets secreted from ER accidentally, it'll come back to ER. Okay, because we have given it a tag that listen, you belong to ER only. So a C terminal KDV motif will ensure that it remains in the ER. So the answer will be, according to me, it will be ER retention of the protein. As I checked the answer key, the answer was given the protein to be degraded by ubiquitin proteasome pathway, which I don't think will be right, because this option will only be right when आप बात करोगे ubiquitin tag की. When the protein is tagged with ubiquitin, then only it will be targeted for ubiquitin proteasome pathway. So answer here will be ER retention of the protein. Let's move to the third question. Third is 5-methyl cytosines are common sites for mutations, because 5-methyl cytosine में आपको क्या क्या चीज़ें याद आती हैं? Whenever you see a question, जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें आपको पता है वो आप लिख दो. तो 5-methyl cytosine आपका क्या हो जाता है? डीएमिनेट हो जाता है. डीएमिनेट होकर क्या बनाता है? आपका थाइमिन बनाता है. तो जब भी एक बेस गेट्स कन्वर्टेड इनटू अनदर बेस, एंड तब प्रॉब्लम क्या हो जा रही है? थाइमिन में कन्वर्ट हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट द प्रॉब्लम इज इसकी बेस पेयरिंग प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी. थाइमिन पेयर्स विद ए, वेराज जो आपका साइटोसिन है वो जी से पेयर करता था. ठीक है, तो क्या हो जाता है कि ये अब डीएमिनेट हो जाता है थाइमिडीन से. सो दीज आर कॉमन साइट्स फॉर म्यूटेशंस बिकॉज दे कैन डीएमिनेट टू थाइमिन. सी बी भी वही बात कर रहा था कि दे कैन मिस पेयर विद एडिडीन, बट द फैक्ट दैट पहले क्या चीज़ होगी? पहले ये थाइमिडीन में कन्वर्ट होता है. सो द आंसर विल बी सी. Then come to fourth question. Fourth is nickel nitroacetic acid columns are used in dash chromatography. So nickel chromatography में आपने पढ़ा होगा कि histidine tags लगाते हो. आप क्या लगाते हो? polyhis tag. ओके, सो ये polyhis tag. अब you'll ask me question कि मैम जो C2N N2C आपकी प्रोटीन होती है, इसके किस टर्मिनस पे आप पॉलीहिस टैग लगाओगे? राइट, तो आप पॉलीहिस टैग किस टर्मिनस पे लगाते हो? सो पॉलीहिस टैग कैन बी एट आइदर ऑफ द टर्मिनस. आपका यहाँ पे हिस्टिडीन हो सकता है लगा हुआ, या फिर आपका यहाँ पे हिस्टिडीन हो सकता है. ओके, सो इट कैन बी प्रेजेंट एट, सॉरी मैंने सेम ही टर्मिनस बना दिया. सो हियर as well as here, that is C as well as N terminus. Okay,
सो दोनों टर्म इस पे हो सकता है. सो निकल नाइट्रो एसिटिक एसिड कॉलम्स कहाँ पे यूज़ होती हैं? जहाँ पे एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी करनी होती है. एफिनिटी इज व्हाट? अट्रैक्शन और some mutual relation with something, right? So affinity chromatography. And then fifth question is antibiotic that resembles the 3' end of charged tRNA molecule. So your charged tRNA molecule will have what? आपके charged tRNA molecule की speciality क्या है? That it will have amino acid, right? So the charged tRNA amino acid tRNA जो होता है उसका 3' end resembles with one antibiotic जो कि क्या है आपकी प्यूरोमाइसिन है. एंड लेट मी टेल यू प्यूरोमाइसिन सिंथेटिक जब डिज़ाइन की गई होगी देन उसको बनाया ही ऐसे है कि इट रिजेंबल्स विद द 3' एंड ऑफ दी टीआरएनए मॉलिक्यूल. क्यों? ताकि वो आपके प्रोटीन सिंथेसिस को इंटरफेयर कर सके, राइट? सो पी फॉर प्यूरोमाइसिन, पी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, राइट? सो वन ट्रिक विल बी कि आपका प्यूरोमाइसिन इनहिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस. बोथ आर स्टार्टिंग विद दी अल्फाबेट पी. ओके, सो द आंसर इज पी. This question is, I think, by far the most repeated question. Sixth question is, mitochondria are involved in the following except ATP production. Yet yes, it does. ATP production, fatty acid biosynthesis, of course it does. TCA cycle, of course it does. Glycosylation mitochondria involved नहीं होता है तो कौन होता है? We all know, ये तो बहुत सिंपल चीज़ है. ER as well as Golgi, right? ER में N linked होता है, Golgi में O present है तो O linked होता है. Okay, so answer will be glycosylation. Then comes seventh question. Mycoplasmas are bacterial cells that, okay, mycoplasmas although they are not bacterial cells but then also gram stain ये लेते हैं, they are called as bacterial cells. So mycoplasmas अभी तक के smallest reproducing organelles है, reproducing organisms है, sorry. अब इनकी प्रॉब्लम क्या है कि they don't have a cell wall. When they don't have a cell wall, absence of cell wall is there. सो व्हाट हैपन्स, आपका जो भी वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम है वो इस पर काम नहीं कर पाएगा. ओके, वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम कौन कौन से होते हैं? वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम आपका क्या है? पेनिसिलिन है. पेनिसिलिन के जितने भी सिंथेटिक फॉर्म आए जैसे कि एम्पिसिलिन है, तो अगर पेनिसिलिन काम नहीं कर पा रहा है तो एम्पिसिलिन भी नहीं काम कर पाएगा. दैट मीन्स माइकोप्लाज्मल इन्फेक्शंस आर what? They are resistant to penicillin. Why? Because they don't have a cell wall. तो B तो वैसे ही गलत हो गया. They don't have a cell wall. It is saying that they have a rigid cell wall. They don't have. So C option will be correct, that they are resistant to penicillin. Eighth is the technique for identifying the nucleic acid sequences bound by a DNA और RNA binding protein. So in a sense ये क्या पूछ रहा है कि आपके जब न्यूक्लिक एसिड as well as प्रोटीन के आप रिलेशन को बताना चाहते हो तो विच मॉलिकुलर टेक्निक विल बी यूज. तो हम क्या यूज़ करते हैं इसमें? डीएनए फुटप्रिंटिंग, राइट? फुटप्रिंटिंग आप लेट मी गिव यू वन सिनेरियो जिसमें आप यूज़ कर सकते हो. दैट इज़ अगर आपको कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, से फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हो कि एक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, आपकी हाइपोथीसिस ही यही है कि एक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड्स टू माई डीएनए, उसके बाद वो डाउनस्ट्रीम दूसरे फैक्टर्स को रेगुलेट कराता है या एक्टिवेट कराता है. तो व्हाट यू विल हैव टू डू, आपको डीएनए प्रोटीन इंटरैक्शन दिखाना पड़ेगा. तो डीएनए प्रोटीन इंटरैक्शन के लिए आप ईस्ट हाइब्रिड भी यूज़ कर सकते हो. ऑल्सो यहाँ पे ईस्ट हाइब्रिड का ऑप्शन ही नहीं है तो क्या आप यूज़ करोगे? फुटप्रिंटिंग ऐसे. ओके, सो लेट्स जंप टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर ninth question. Ninth is to know the structural similarity between two protein that serves two uses. See, bioinformatics present है in these exams. अगर मास्टर्स बायोइन्फॉर्मेटिक्स में किया है वेल एंड गुड, बट देन ऑल्सो अगर नहीं किया है तो स्मॉल चीज़ें आप पढ़ लो. जैसे ये क्वेश्चन बहुत ईजी है बिकॉज प्रोडॉम को सेपरेट करो. प्रोटीन डोमेन्स, प्रोटीन डोमेन पढ़ने के लिए क्या यूज़ होता है? प्रोडॉम. प्रोसाइट को अलग अलग करो, फ्रेगमेंट करो. प्रोटीन साइट, प्रोटीन में डोमेन भी पढ़ सकते हैं हम प्रोसाइट से, फैमिलीज भी पढ़ सकते हैं, प्लस इसका इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि फंक्शनल साइट्स इससे हम पता कर सकते हैं. देन ट्रेम्बल या TREMBL. तो ये TREMBL क्या होता है? ट्रांसलेटेड इन्फॉर्मेशन देने के लिए होता है. आपका जो डीएनए सीक्वेंस है उस न्यूक्लियोटाइड की ट्रांसलेटेड इन्फॉर्मेशन देता है. ओके, तो बच गया क्या ऑप्शन हमारे पास? डाली. अब DALI जो होता है, डाली इज़ फॉर कंपेयरिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर इन 3D. तो 3D में एक का 3D स्ट्रक्चर दे दिया, आपके दूसरे प्रोटीन का भी आपने इन्फॉर्मेशन डाली सीक्वेंस की, तो दूसरे का भी दे दिया. तो नाउ यू कैन कंपेयर बिटवीन दीज की यहाँ पे 3 टर्न्स है, यहाँ पे सिर्फ 2 टर्न्स है, राइट? तो वो आप किससे कर सकते हो? डाली से. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डाली. 10th इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूलर शेपेरॉन. मॉलिक्यूलर शेपेरॉन्स आपको पता है कहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हीट शॉक प्रोटीन्स आपके मॉलिक्यूलर शेपेरॉन्स हैं. अब जो ऑप्शन ए है DNAG, वो हम सबको पता है कि इसका काम करता है बैक्टीरियल प्राइमर का काम करता है, राइट? प्राइमेज का काम करता है. देन बी इज
डीएनए अगेन इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया, लाइसोजाइम तो कहीं से हो ही नहीं सकता इसका आंसर, तो शेपेरॉन क्या होगा, डीएनए के होगा, डीएनए के इज बेटर नोन एज व्हाट, इज नोन एज HSP70. Then comes 11th question. Activation of phospholipase C initiates a sequence of events including all of the following except पूछ रहा है, ठीक है। तो आपसे PLC जो करता है, फॉस्फोलाइपेज सी जो करता है, उसकी सारे फंक्शंस के अलावा यानी कि जो ये नहीं करता है वो पूछ रहा है। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज रिलीज ऑफ इनोसिटॉल 4,5 बिसफॉस्फेट फ्रॉम अ फॉस्फोलिपिड, सो इट विल बी व्हाट, PIP2 का रिलीज कराता है PLC, कभी भी नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, वो क्या कराता है, IP3 से, जो IP3 गेटेड चैनल्स होते हैं उससे कैल्शियम आयन रिलीज कराता है, वो भी कहाँ से, SER से, राइट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि ये एक्सेप्ट पूछ रहा है तो आंसर विल बी ए। अब आते हैं 12th, 5' रेस इज ऑफन नेसेसरी टू, रेस होता क्या है, रैपिड एम्पलीफिकेशन ऑफ cDNA एंड्स। अगर आपको किसी भी DNA का 5' एंड को क्लोन करना है, आप चाहते हो कि आई वांट टू क्लोन इट, अगर आप इसको क्लोन करना चाहते हो तो आप एक तरीके का PCR परफॉर्म करोगे विच इज़ कॉल्ड एज व्हाट, 5' रेस इज व्हाट, रैपिड एम्पलीफिकेशन ऑफ cDNA एंड्स। यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग अबाउट रेस कि उसमें आप होमोपॉलीमर टेलिंग करते हो, क्या करते हो, होमोपॉलीमर टेलिंग करते हो, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, इफ यू नीड टू क्लोन 5' रीजन्स ऑफ C ऑप्शन, जीन्स फ्रॉम mRNA। 13th question is activation of genes in euchromatin region is an outcome of dash of histone and terminal tails. We all know कि euchromatin में एक्टिविटी होती है, क्यों, क्योंकि आपका जो DNA है, जो आपका क्रोमेटिन स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा ओपन होता है, राइट। तो वो क्या होता है, ओपन होता है। तो ये क्या होते हैं आपके EC रीजन्स, EC यानी कि यूक्रोमेटिन रीजन्स। अब हिस्टोन के एंड टर्मिनल टेल्स पे कौन सी मॉडिफिकेशन होती है, यहाँ पे एसिटाइलेशन होती है, क्यों, क्योंकि जो शील्डिंग चार्ज, नेगेटिव चार्ज होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, वो कम हो जाता है तो आपकी जो रिपल्शन है वो बढ़ जाता है, इसी वजह से आपका DNA का क्रोमेटिन थोड़ा सा ओपन अप हो जाता है। तो आंसर विल बी एसिटाइलेशन। अब एसिटाइलेशन में भी क्या, हाइपर एसिटाइलेशन, राइट। अब आते हैं हम 14th क्वेश्चन पे। 14th इज इंटीग्रेशन ऑफ फाज लैम्डा जीनोम इनटू ई कोलाई क्रोमोसोम इज बाय, ये तो हम सबको पता है किससे होता है, साइट स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन से होता है। तो इसमें आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, BOB POP, है ना, BOB ये जाता है BOB प्राइम POP प्राइम। तो ये कोर रीजन जो है वो सिमिलर होने की वजह से, एक छोटा सा कोर रीजन, तो आपका बैक्टीरिया और फाज जो है वो रिकम्बाइन करते हैं, और यही रीजन है कि योर लैम्डा फाज इज सक्सेसफुल इन इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया, ठीक है। तो आंसर विल बी साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। अब क्वेश्चन इज 3' ओवरहैंग्स ऑफ 2 बेस पेयर लेंथ्स आर फाउंड इन, अब ये तो ऑप्शन देखने पड़ेंगे, जीनोम लेंथ RNA ऑफ CAMV, कॉलिमोवायरस जो होता है, इसमें होता है क्या, डबल स्टैंडर्ड DNA होता है, इसमें परफेक्ट बेस पेयरिंग पाई जाती है, इसमें नहीं प्रेजेंट होता। बी इज सबजीनोमिक RNAs ऑफ RNA वायरसेस, ये तो बहुत बड़े ग्रुप की बात कर दी कि उनके जो सबजीनोमिक RNAs होते हैं, चलो भाई इसको लेट्स कीप इट इन डाउट कि क्या पता होता हो। सी इज टैग पॉलीमरेज एम्पलीफाइड DNA फ्रेगमेंट्स, नो, वो तो कंप्लीट आपको पेयरिंग देते हैं, ओवरहैंग्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। डी शॉर्ट RNA फ्रेगमेंट्स इन्वॉल्व इन RNA साइलेंसिंग, ओके, सो साइलेंसिंग में siRNA mRNA का रोल है, मतलब जो माइक्रो RNAs है उनका रोल है। तो जो siRNA होता है उसमें देयर इज व्हाट, 2 न्यूक्लियोटाइड के ओवरहैंग प्रेजेंट होते हैं दोनों साइड पे, 3' एंड पे 2 न्यूक्लियोटाइड के ओवरहैंग प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, 3' ओवरहैंग्स ऑफ 2 बेस पेयर लेंथ आर फाउंड इन योर RNA साइलेंसिंग वाले RNAs में। अब मैं एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ आपको, किसके बारे में, siRNA के बारे में। siRNA के 2 बैंड्स हुए, वन ऑफ इट इज कॉल्ड एज व्हाट, एंटीसेंस, और दूसरे को क्या बोलते हैं, पैसेंजर। अगर एक को एंटीसेंस बोल रहे हैं तो दूसरे को सेंस भी बोल सकते हैं, राइट। तो एंटीसेंस या फिर गाइड, और दूसरा क्या होता है, सेंस या फिर पैसेंजर, ठीक है। तो इसमें 3' ओवरहैंग किसमें प्रेजेंट होते हैं, आपके RNA साइलेंसिंग वाले RNA फ्रेगमेंट्स में। 16 इज मैट्रिक अटैचमेंट रीजन्स आर इन्वॉल्व इन, अच्छा, मैट्रिक्स अटैचमेंट रीजन्स हमेशा न्यूक्लियस के पास बाइंडिंग वाले होते हैं। तो देखते हैं कि न्यूक्लियस वाले ऑप्शंस क्या क्या हैं। फर्स्ट इज स्पेसिफिक अटैचमेंट ऑफ पैथोजन टू सेल सरफेस, नो, डायरेक्ट सेल सरफेस पे आप न्यूक्लियस की बात तो नहीं कर रहे हो, सो द ऑप्शन ए विल बी इनकरेक्ट। अब आता है ऑप्शन नंबर बी, देखते हैं। ऑप्शन बी इज फॉर्मेशन ऑफ क्लैथरिन कोटेड वेसिकल, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे तो AP इन्वॉल्व होते हैं, अडेप्टर प्रोटीन। सी इज जीनोमिक कंपार्टमेंटलाइजेशन क्रिएटिंग क्रोमैटिन डोमेन्स फेवरेबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन, हो सकता है, क्यों, क्योंकि आई वॉज टॉकिंग अबाउट व्हाट, न्यूक्लियर रीजन। तो इसमें क्या होता है, जो मैट्रिक्स अटैचमेंट प्रोटीन होते हैं वो आके कंपार्टमेंटलाइज करते हैं जो क्रोमेटिन के नॉर्मल डोमेन्स, यानी कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन सकें ताकि आप ट्रांसक्रिप्शन इजीली करवा सको, तो उसमें इन्वॉल्व होते हैं व्हाट, मैट्रिक्स अटैचमेंट रीजन्स, मार।
सो 17th क्वेश्चन पे मूव करते हैं. 17 इज द बायोसेफ्टी प्रॉब्लम ड्यू टू स्प्रेड ऑफ ट्रांसजीन्स फ्रॉम ट्रांसजेनिक प्लांट्स टू इट्स वाइल्ड रिलेटिव्स कैन बी अवॉइडेड बाय. तो आपने जो आपकी ट्रांसजेनिक लाइन बनाई थी, जो भी आपकी ट्रांसजेनिक लाइन प्रेजेंट थी, फॉर एग्जांपल ये ट्रांसजेनिक प्लांट है, ओके. अब आप कह रहे हो कि इसका वाइल्ड में जो जीन है वो गलती से इसका जीन जो है वो वाइल्ड में इंटीग्रेट ना हो जाए. इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को आप रेक्टिफाई करने के लिए क्या करते हो? तो आप क्या करते हो, आप ट्रांसप्लास्टोमिक लाइन्स बनाते हो. व्हाट डू वी मीन बाय ट्रांसप्लास्टोमिक लाइन्स? ट्रांसप्लास्टोमिक लाइन्स मतलब होता है जो आपके नए जीन्स है ना, जो आप फॉरेन जीन्स, विच एवर फॉरेन जीन यू विल इनकॉर्पोरेट, दोज न्यू जीन्स विल नॉट बी इंसर्टेड इन न्यूक्लियस बट आर इंसर्टेड इन व्हाट? क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, तो न्यू जीन्स विल नॉट बी इंसर्टेड इनटू न्यूक्लियस में नहीं इंसर्ट करोगे, रादर इट इज़ इंसर्टेड इन व्हाट? योर क्लोरोप्लास्ट. तो क्लोरोप्लास्ट में इंसर्ट होते हैं. ओके, so developing transplastic lines will do what? It will reduce the biosafety problem which is present due to spread of transgenes, okay, from transgenic plant to its wild relative. So it can be avoided by developing transplastic lines. 18th question is full expression of the lac operon requires what? हमें पता है कि CAMP की ज़रूरत है. एक रेगुलेशन CMP पाथवे से चल रहा है और एक रेगुलेशन आपके लैक्टोज पाथवे से चल रहा है. अब जो मेन इंड्यूसर है, मतलब जो आपका लैक्टोज है, इट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एलोलैक्टोज. अगर हम एक स्टेप बचा सकते हैं तो व्हाई नॉट यूज़ दैट, राइट? सो एलोलैक्टोज एंड CAMP हमें चाहिए होंगे फॉर फुल एक्सप्रेशन ऑफ लैक ओपेरॉन. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लैक्टोज एंड एलोलैक्टोज? तो एक फनी बात बताती हूँ, इट इज़ द डिफरेंस ऑफ एलो. नो, ऑफ कोर्स नॉट. सो इट इज़ द डिफरेंस बिट ऑफ लैक्टोज में आपका जो बॉन्ड होता है दैट इज़ β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. जो एलोलैक्टोज होता है वहाँ पे आपका जो बॉन्ड होता है ट्रांस ग्लाइकोसाइलेशन की वजह से इट बिकम्स व्हाट? β16 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, राइट? ये एलोलैक्टोज में प्रेजेंट होता है. सो एलोलैक्टोज एंड CAMP विल बी रिक्वायर्ड. देन कम्स 19th क्वेश्चन, दैट इज it says an enzyme that induces double strand breaks in DNA and then rejoins them is called as. जो double strand breaks involve कराता है वो है type 2 topoisomerase. टाइप 2 टोपोआइसोमरेज, और उसको क्या बोलते हैं? DNA गायरेज, राइट? अब DNA गायरेज वाले ही आई हैव टॉक्ड अबाउट दी आंसर. ठीक है, अब मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ कि जब भी कैंसर होता है तो क्या करते हैं कि आपकी DNA गायरेज के इनहिबिटर्स यूज़ कर देंगे. DNA गायरेज ने क्या किया? आपके कैंसर सेल है फॉर एग्जांपल, ये इसने ऐसे डबल स्टैंडर्ड ब्रेक इंट्रोड्यूस कराई, राइट? अब ये सील नहीं कर पाएगा. क्यों? क्योंकि मैंने इसका इनहिबिटर यूज़ कर दिया, विच इज़ आई गेस सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन. बट एक बार आप चेक कर लेना, ऑल दो उसकी ज़रूरत नहीं है, दिस इज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. तो कैंसर सेल्स में सॉरी सेल नॉट सेल लाइन्स, कैंसर सेल्स में कीमोथेरेपी के टाइम पे इस गायरेज को इनहिबिट कर दिया जाएगा सो दैट ये डबल स्टैंडर्ड ब्रेक रिमेन्स डबल स्टैंडर्ड ब्रेक और ये सेल आपका डिस्कार्ड हो जाए. यही आपका कैंसर सेल है, अब ये सेल डिस्कार्ड हो जाएगी. एक बार आप इसको रिवाइंड करके सुन लेना. आई होप इट विल मेक सेंस टू यू. ओके, अब आते हैं 20th क्वेश्चन पे, विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स इंटरफेरॉन सस्पेक्टेड मोड ऑफ एक्शन इन प्रोड्यूसिंग रेजिस्टेंट टू वायरल इन्फेक्शन. सो व्हाट डज इट डू? जब भी आप इंटरफेरॉन की बात करते हो, है ना, बात करते हो, तो आपको ये समझ में आता होगा कि ये एंटीवायरल एक्टिविटी परफॉर्म करता है, राइट? तो अब तो ये एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ के लिए भी जाना जाता है, राइट? तो अब इंटरफेरॉन ऐसा क्या करता है भाई, किस तरीके से काम करता है? व्हाट इज़ इट्स सस्पेक्टेड मोड ऑफ एक्शन इन प्रोड्यूसिंग रेजिस्टेंस टू वायरल इन्फेक्शन? सो इट इज़ सिंपल कि इसका एक्शन मतलब ऐसा प्रोटीन बना देगा जो कि ट्रांसलेशन या फिर ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट कर दे आपके जो भी पैथोजन है, राइट? उस पैथोजन के अगेंस्ट. पैथोजन क्या है? वायरल इन्फेक्शन में इन्वॉल्व है, तो वायरल प्रोटीन्स, तो वायरल जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है या वायरस हमारे ही सिस्टम को हाईजैक करके इट सेज ओके फाइन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग प्रोटीन्स फॉर मी. तो आपके इंटरफेरॉन्स क्या करेंगी? दे विल प्रोड्यूस अ प्रोटीन विच विल इनहिबिट ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन ऑफ दैट वायरस, राइट? अब आते हैं हम 21st क्वेश्चन की तरफ. तो जो आपका 21st क्वेश्चन है, दैट सेज द मोस्ट सेंसिटिव मेथड ऑफ डिटेक्टिंग इन्फेक्शन बाय साइटोमेगालोवायरस इन द न्यूबॉर्न इज. सी CMV जो है वो हर्पीवायरिडी फैमिली से आता है, मतलब जहाँ पे हर्पीस वाले ओके सॉरी मैं हेपेटाइटिस से कंफ्यूज हो गई थी, या हर्पीस वायरस से. तो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस होता है. जैसे व्हाट डू वी कॉल, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज दिस जनेऊ. जो हिंदू रिलीजन में देयर इज़ अ
देर इज़ अ प्रोसेस जिसमें आप जनेऊ धारण करते हो, तो दैट इज़ सिंपली व्हाट, एक माला टाइप का स्ट्रक्चर, मतलब दैट इज़ सिंपली एक कपड़े की रस्सी बनी हुई स्ट्रक्चर जिसको आप मेल्स में जनरली आप सर्च कर लेना जनेऊ क्या होता है, जिनको नहीं पता। तो हर्पीस सिम्प्लेक्स में क्या होता है, जनेऊ पैटर्न में दाने निकलते हैं बॉडी पे, सो दैट इज़ दी व्हाट आइडेंटिफाइंग फीचर। सॉरी थोड़ा सा मैं साइड में निकल गई, ऑल्दो मैं हर्पीस वायरस के बारे में बता रही थी। सो द क्वेश्चन सेज कि सेंसिटिव मेथड क्या है डिटेक्ट करने के लिए, वायरस आइसोलेट करो। अगर आप वायरस आइसोलेट करोगे, उससे करेक्ट इन्फॉर्मेशन तो कुछ भी नहीं दे सकता, राइट। सो द आंसर विल बी आइसोलेशन ऑफ वायरस। मोस्ट सेंसिटिव पूछा है, मतलब all four of them are somehow the techniques for detecting your CMV infection in newborns. So सबसे ज़्यादा सेंसिटिव क्या है, आइसोलेशन ऑफ वायरस। सो 22nd क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन स्टेफाइलोकोकाई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स कैन एग्जिस्ट आइदर ऑन प्लाज्मिड और क्रोमोसोम्स, सो द जीन्स आर कैरिड बाय। इसका पेपर भी छपा था, इसके पेपर का मैं इंसर्ट में आई विल शो यू द स्क्रीनशॉट। सो द पेपर सेज, इसमें क्या होता है, जो आपके टीपीज होते हैं यानी कि जो ट्रांसपोजॉन होते हैं, उन ट्रांसपोजॉन पे ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स प्रेजेंट है, तो आंसर विल बी ट्रांसपोजॉन, स्टेफाइलोकोकस ओरियस। उसके बाद आता है द मेन होस्ट एस म्यूटेंस, याद कर लेना आप, एस म्यूटेंस इसी की फैमिली से है, जो आपके डेंटल केरीज होती हैं, जो दांत खराब होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ एस म्यूटेंस। उसके बाद आता है 23rd क्वेश्चन, द मेन होस्ट डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन्स। एक्सोटॉक्सिन सिक्रीट होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया कुछ एक्सक्रीट कर रहा है, अब उस एक्सक्रीशन की वजह से हमारी बॉडी में उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स आ रहा है, वो कुछ पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स कुछ इस फॉर्म में हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल चीज़ प्रोड्यूस करे, तो वो हो गया एक्सोटॉक्सिन। तो मेन होस्ट डिफेंस क्या हो जाएगा, हम मैक्रोफेज को करें, या फिर हम IgM बनाएं, या फिर हम हेल्पर टी सेल्स को करें, या फिर हम होस्ट सेल के जो रिसेप्टर्स हैं उनको मॉड्यूलेट करें। एंटीबॉडीज़ अगर आप प्रेजेंट है तो आपको कुछ भी नहीं करना, तो मेन होस्ट डिफेंस किससे आ जाएगा, एंटीबॉडीज़ से, ठीक है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स आता है। सो मेन रिस्पॉन्स आ जाएगा आपका IgG और IgM से। 24th क्वेश्चन से द इफेक्ट्स ऑफ एंडोटॉक्सिन इंक्लूड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अच्छा, एंडोटॉक्सिन्स होते क्या है, क्या व्हाट इज द डिफरेंस। तो एंडोटॉक्सिन्स में क्या होता है, जब भी बैक्टीरिया आपका LPS मतलब बैक्टीरिया खुद ही चल रहा है, दैट इज एक्टिंग एज अ टॉक्सिन फॉर द बॉडी, तो LPS मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया विल एक्ट एज अ टॉक्सिन। ऑल्सो जब बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी, तो जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा है, जो निकल जा रहा है बैक्टीरिया से, अब उसकी डेथ के बाद भी वो हमें नहीं छोड़ रहा है, दैट इज़ व्हाट, एंडोटॉक्सिन। तो अब एंडोटॉक्सिन का इफेक्ट में क्या क्या आएगा, ऑफ कोर्स ऑप्सोनाइजेशन आएगा, फीवर आएगा, एक्टिवेशन ऑफ कोआगुलेशन कैस्केड भी आएगा। हाइपोटेंशन नहीं आ सकता, BP की उससे कोई रिलेशन ही नहीं है ना, तो हाइपोटेंशन विल बी दी आंसर। अब 25th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू कंसर्निंग NK सेल्स। NK सेल्स के बारे में क्या ट्रू है बोल रहा है, तो आपके जो NK सेल्स हैं उनके लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है बोल रहा है। तो जो आपके NK सेल्स होते हैं ना, वो ना ट्यूमर के रिस्पॉन्स में भी इन्वॉल्व हैं। 1 सेकेंड, लेट मी टेक आउट पेन। सो जो ट्यूमर रिस्पॉन्स होता है, ट्यूमर सेल्स उस रिस्पॉन्स में भी इन्वॉल्व हैं, तो दे डिस्प्ले साइटोटॉक्सिक इफेक्ट ऑन ट्यूमर सेल्स। अब आता है 26 क्वेश्चन विच सेज कि द ई वैल्यू इन ब्लास्ट सर्च मेजर्स। जो ई वैल्यू होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, सो ई वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ही ज़्यादा आपकी सर्च अच्छी होगी। अगर ई वैल्यू 0 है, दैट मीन्स सारा पूरा कंप्लीट मैच, राइट। सो ई वैल्यू इन ब्लास्ट सर्च यानी कि रिलायबिलिटी ऑफ द सर्च, आप सर्च पे कितना रिलाई कर सकते हो। देन 27th इज ड्यूरिंग प्रोटीन एवोल्यूशन द रीजन ऑफ प्रोटीन मोस्ट प्रोन टू म्यूटेशन। फंक्शनल डोमेन होगा तो हर बार आपकी प्रोटीन का फंक्शन लॉस हो जाएगा, तो ए नहीं हो सकता। स्ट्रक्चरली कंजर्व डोमेन बिल्कुल नहीं हो सकता, बिकॉज वो कंजर्व्ड ही किस लिए है। हाइड्रोफोबिक डोमेन अंदर होते हैं प्रोटीन के, बहुत कम चांसेस है कि वहाँ पे म्यूटेशन और वो प्रोन हो जाए, सो द आंसर इज कनेक्टिव लूप्स, ओके। 28th क्वेश्चन इज ओपेरॉन हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेगुलेशन बाय सिंगल रेगुलेटरी प्रोटीन इज एराओपेरॉन। जो एराबिनोज वाला ओपेरॉन होता है, दैट इज बोथ, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेशन एक ही सब यूनिट से हो रहा होता है इसमें। उसके बाद 29th क्वेश्चन, UVR ABC एंडोन्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन विच रिपेयर सिस्टम। कौन से रिपेयर सिस्टम में प्रेजेंट होता है, बेस एक्सcision रिपेयर, ओके। द 30th इज फर्स्ट कॉमर्शियली प्रोड्यूस प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट यूजिंग बायोरिएक्टर टेक्नोलॉजी। ऑल्दो ये बायो प्रोसेसिंग का क्वेश्चन था, बट इट्स एन ओल्ड क्वेश्चन, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता था। दिस वॉज शिकोनिन, राइट। तो पहला सेकेंडरी मेटाबोलाइट बना था शिकोनिन से। यू कैन पेटेंट अ प्रोडक्ट प्रोसेस ओनली इफ इट इज अ मेजर डिस्कवरी, novel, non-obvious and usable, new and extension of earlier principle, new application of a patented product. पेटेंट करने के लिए it has to be novel, has to be non-obvious and has to be usable. तो तीन ही क्राइटेरिया है। बी ऑप्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न प्रेजेंट इन अल्फा हेलिसेस, तो N और N+4 के बीच में जो बॉन्डिंग होती है,
दैट इज व्हाट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्फा हेलिसेस. अब कार्ल थाइमस टर्मिनल डीऑक्सीन्यूक्लियोटिडल ट्रांसफरेज. अब टर्मिनल डीऑक्सीन्यूक्लियोटिडल ट्रांसफरेज है तो क्या करता होगा, एंड न्यूक्लियोटाइड्स को ट्रांसफर करता होगा. कहाँ ट्रांसफर करता है, 3 प्राइम एंड पे ट्रांसफर करता है. तो एड्स न्यूक्लियोटाइड टू द 3 प्राइम OH टर्मिनस ऑफ ए DNA molecule. Then comes 34th question, which is the rate of renaturation of DNA is governed by the equation. तो एक आप कॉट वैल्यू पढ़ते हो विच इज C0T वैल्यू. तो कॉट वैल्यू का ही क्वेश्चन है. इट इज़, ये किस रिएक्शन से आया है, dC/dt इज इक्वल टू माइनस KC². या फिर ये सिंपली यहाँ पे होता था dC/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस C². ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट कि जो रेट ऑफ रीनैचुरेशन है इज गवर्न्ड बाय फर्स्ट ऑप्शन. द एंजाइम ऑफ चॉइस फॉर कन्वर्टिंग DNA विथ 3 प्राइम एंड ओवरहैंग इनटू अ ब्लंट एंडेड वन. मतलब कोई भी पॉलीमराइज करा दो, यहाँ पे ओवरहैंग प्रेजेंट है, इस ओवरहैंग को पॉलीमराइज करा दोगे तो दैट इज बीइंग डन बाय T4 DNA पॉलीमरेज. 36 is if you want literature information which is the best website to visit, it is PubMed. PubMed से ही पढ़ते हो आप लोग भी मोस्टली, अगर आप कभी ध्यान दोगे तो दैट इज PubMed. एंड PubMed में भी एक होता है PubMed, एक होता है PMC, PubMed सेंट्रल. सो PubMed सेंट्रल एक फ्री ऑफ कॉस्ट है वेबसाइट जो भी है, और जो PubMed है वो पेड वेबसाइट है. ओके, सो द आंसर विल बी PubMed. व्हाट वुड बी द लाइकली एक्सप्लेनेशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ स्यूडोजीन्स. मतलब स्यूडोजीन्स प्रेजेंट ही क्यों है, क्योंकि जीन डुप्लीकेशन और म्यूटेशन इवेंट्स हुई थी, इस वजह से स्यूडोजीन्स आते हैं. द अल्फा हेलिकल मोटिव्स और जीन रेगुलेटरी प्रोटीन जनरली बाइंड टू, हमेशा याद रखना मेजर ग्रुप्स में बाइंड करते हैं ये, और मोस्टली मिलता है BDNA. तो क्या ये में बाइंड करेंगे, मेजर ग्रुप ऑफ BDNA. देन कम्स विच ऑफ द फॉलोइंग आयनाइजेस एट फिजियोलॉजिकल pH. हिस्टिडीन, जो भी चीज़ आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा मिलती है दैट इज़ ब्लड. तो ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, बफर के लिए हिस्टिडीन. क्यों, क्योंकि जो फिजियोलॉजिकल pH होता है 7 के आसपास आयनाइजेशन दिखाता है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ प्रेजेंट, एंड हिस्टिडीन ही होता है जो इस पर आयनाइज करता है. 40th क्वेश्चन इज अ पेप्टाइड बॉन्ड A हैज़ अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर. आगे जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट हैज़ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर. ओके. 41 इज कंप्लीट डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन लीड्स टू अ लॉस ऑफ फॉलोइंग प्राइमरी स्ट्रक्चर. हमें पता है कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो रिटेन्ड रहता है, बाकी सारे स्ट्रक्चर लूज हो जाते हैं, तो सेकेंडरी और टर्चरी लूज हो जाएंगे, डी ऑप्शन. देन कम्स हीला सेल लाइन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच टाइप ऑफ कार्सिनोमा. हीला था हेनरिएटा लैक्स. हेनरिएटा लैक्स करके एक 31 साल की लेडी थी 1951 में. शी वॉज अ ब्लैक वुमेन. उनकी डेथ हुई थी बिकॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर, एंड उनकी सेल लाइन्स को दे हैव बीन कल्चर्ड, अभी काम चलता है उन पर, एंड उन्हीं सेल लाइन्स को हम हीला सेल लाइन्स बोलते हैं, एंड इट वॉज डिराइव्ड फ्रॉम सर्वाइकल कैंसर. आई थिंक एक लाइन आपको बतानी चाहिए कि हीला की जो फैमिली थी उनने कभी भी रॉयल्टी नहीं ली फॉर द सेल लाइन्स, क्योंकि वो एक काइंड ऑफ इतना बड़ा नॉट क्या बोलते हैं उसे, डिवोशन है. बट द थिंग कि हीला की फैमिली भी कभी वो लाइमलाइट में नहीं आए कि उन्हें पेटेंट चाहिए या उन्हें पैसा चाहिए इसके लिए, बिकॉज दिस वॉज अ सैड थिंग, राइट. दे लॉस द पर्सन, दे लॉस द लेडी. उनके 5 बच्चे थे, तो लेडी की डेथ हो गई. देन ऑफ कोर्स वो रॉयल्टी लेके क्या ही करेंगे. तो दिस वाज अ डार्क साइड ऑफ दिस हीला सेल लाइन. हीला सेल लाइन 31 ईयर्स की एक लेडी से लिए गए थे विच हु वाज हैविंग सर्वाइकल कैंसर. देन 43rd क्वेश्चन इज विनब्लास्टीन अ कीमोथेरेपेटिक एजेंट, इट इनहिबिट्स व्हाट. सीधा पता है, माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन, एंटी कैंसरस ड्रग है ये. देन 44 इज टर्नर सिंड्रोम इज ड्यू टू X0, बोलती हूँ मैं इसे X0, यानी कि एक फीमेल में ही एक एक्स क्रोमोसोम नहीं पाया जाएगा, दैट इज X0. उसके बाद 45 इज विच वन द फॉलोइंग इज नॉट एन APC. सिंपल सी बात है, चारों में से कौन सा APC एंटीजन को प्रेजेंट नहीं करता है, इनके सेल्स नहीं करते. 46 बर्ड फ्लू इन लास्ट डेकेड वॉज H5N1. नॉर्मली ये H1N1 की तरह आया था, बट बिकॉज ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये और ज़्यादा एडवांस होता गया एंड इट बिकेम H5N1. 47th is UV radiation causes DNA damage by formation of थाइमिडीन डाइमर, हम सबको पता है. और हेल्प किससे होती है, फोटोलाइज से. फोटोलाइज रिवर्स कर देता है इसको डायरेक्ट फोटो रिएक्टिवेशन से. सो द आंसर विल बी थाइमिडीन डाइमर. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज sorry, 48 80 ऑटो रिएक्टिव सेल्स आर प्रेजेंट इन आवर इम्यून सिस्टम ड्यू टू फर्स्ट इंक्रीज टॉलरेंस. अगर टॉलरेंस ही ज़्यादा होती तो वो आपस में ही क्यों रिएक्ट करते, राइट. बी इज डिफेक्टिव थाइमिक सिलेक्शन. ऑफ कोर्स थाइमस में इनका सिलेक्शन हो रहा था कि कौन सा सेल अब हमारे सेल को बाहर के पैथोजन से बचाएगा, एज वेल एज कौन सा सेल आपस में ही अपने जो सेल के रिसेप्टर्स हैं या फिर सेल में DNA है, प्रोटीन है, इन सबको ही ऑटो एंटीजन या सेल्फ एंटीजन मान बैठा है. सो थाइमिक सिलेक्शन अगर डिफेक्टिव हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, तो सेल को पता नहीं चलेगा कौन अपना कौन पराया. सो ऑटो इम्यून कंडीशन डेवलप हो जाएगी. So the answer is what? Defective thymic selection.
49th इज विच वन द फॉलोइंग माइक्रोब रिमूव्स ऑयल स्पिल्स बाय डाइजेस्टिंग हाइड्रोकार्बन्स। ये हमें पता है, आई थिंक आप लोग को भी पता होगा। स्यूडोमोनास प्यूटिडा था। आनंद मोहन चक्रवर्ती करके एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवर किया था। एंड इन्होंने एक सुपरबग बनाया था 4 प्लाज्मिड्स को मिला के, राइट। उसमें नैप्थलीन था, ऑक्टेन था, जाइलिन था एंड वन मोर वाज देयर। तो उन चारों को मिला के देयर वाज अ सुपरबग, एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लाज्मिड बनाया था जो ऑयल स्पिल्स हो जाते हैं। शिप्स जब ऑयल ले जा रही होती है तो ऑयल गिर जाता है जब आपकी ओशंस में, तो जो नीचे का माइक्रोबायोम होता है उसको प्रॉब्लम होती है क्योंकि अब ऑयल की लेयर आ गई है वाटर में, और बिकॉज ऑफ दैट हाइपोक्सिया कंडीशन क्रिएट हो जाती है और उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता। तो ये इसका आंसर क्या है? स्यूडोमोनास। आनंद मोहन चक्रवर्ती आपके माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, ठीक है, आप उनके बारे में पढ़ सकते हो। अभी हाल में 2020 में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद आता है 50th क्वेश्चन। अपार्ट फ्रॉम गैस ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन। गैस ट्रांसपोर्ट के अलावा जो आपका हीमोग्लोबिन है वो किस में रोल प्ले करता है? ब्लड बफरिंग में, राइट। मैंने पहले भी बताया था कि हिस्टिडीन की प्रेजेंस होने की वजह से, प्रॉक्सिमल डिस्टल हिस्टिडीन जो आप पढ़ते हो उसकी प्रेजेंस की वजह से ये ब्लड बफरिंग में इन्वॉल्व होता है। ओके, सो आई थिंक इसके साथ हमारे 50 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आई होप you'll get to know a lot of things apart from this mainstream questions, and do let me know in the comment section कि कुछ नया मिला कि नहीं आपको इन्फॉर्मेशन, एज वेल एज हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। ऑल्सो पुराने वीडियो के बारे में बताना है। कीप स्टडिंग, कीप एनलाइटिंग योर सेल्फ। एक चीज़ नहीं जानो एक चीज़ के बारे में, just try to know from 3D perspective. Okay, so thank you, all the best and keep studying.